انٹرنیٹ ایک زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں پر آپ جو ہے نا اگر یہاں پر آپ سمجھ جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں، اگر پھر بگڑ گئے تو پھر بگڑ جاتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگ جب گاڑی والا چلاتے ہیں تو جب بھی کہیں موڑ آتا ہے تو ہم لوگ اپنی گاڑی کی رفتار کو کم کرتے ہیں یا پھر جو ہے اس کو تھوڑا سا دھیرے کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کا آپ کی زندگی کا ایک موڑ ہے. اگر آپ یہاں پر اگر کچھ بن جاتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں، ورنہ پھر اگر بگڑ گئے تو کوئی جو ہے دنیا کی طاقت آپ کو جو ہے سدھارنے والی نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل چھین لیتا ہے. اگر اس کی عقل نہیں رہی تو جو ہے سارے کام جو ہے انجام نہیں دے سکتا ہے. تو یہ چند باتیں تھی. اب اس کے بعد میں پیرنٹس جو سرپرست ہمارے درمیان میں جو آئے ہوئے ہیں اور تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ گھر میں سے پرنسپل صاحب ہیں، سارے لیکچر صاحب کے درمیان میں موجود ہیں، آپ کسی بھی انداز سے اگر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یا پھر آپ کو کسی قسم کی دشواری ہے یا پھر اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بنا جھجک آپ کے سارے سوالات کا جواب پرنسپل صاحب سے ملے گا آپ کو یہاں پر، یا پھر دوسرے لیکچر میں آپ سے گفتگو کریں گے. تو اگر کوئی بات کرنا چاہے تو آپ گفتگو کریے. آپ کالج کے تعلق سے یا پھر تعلیم کے تعلق سے، کلاسز کے تعلق سے، لیکچرز کے تعلق سے کسی بھی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. بلا جھجک بلا خوف. دیکھیے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری ہے، اگر کچھ بھی پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک بلا خوف. کچھ بھی پرنسپل صاحب سے کوئی سوال ہے، آپ کی کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو اختیارات بھی ملے. کچھ بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آپ کے ذہن میں آ رہا تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ بلا جھجک بلا خوف. کچھ بھی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے یا کوئی آپ کو دشواری ہے، کوئی قسم کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کچھ بات ہے تو کہیں آپ لوگ. ہمارا یہ سیشن تھا کہ اس میں جو ہے نا آپ لوگ کچھ سوالات کریں. آپ کو اگر کسی قسم کی دشواری ہے، اگر آپ کا بچہ اگر نہیں آ رہا یا پھر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی لیکچر کا مسائل ہے یا کوئی کلاس نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی اگر وجہ ہے تو آپ بالکل جو ہے نا آپ کو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی میں 1 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں. آخری موقع ہے آپ کے ہاتھ. اگر کچھ بھی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پرنسپل صاحب آپ سے مخاطبت کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا پروگرام کا آخری جو مرحلہ رہے گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیے. فردن جو ہے نا مختلف جو ہے نا جو لیکچرس ہیں، میڈمس ہیں، وہ لوگ جو ہے نا آپ سے گفتگو کریں گے. پھر ایک بار میں آپ سے مخاطبت کر رہا ہوں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں آپ تک پہنچ جاؤں گا. ابھی کوئی اگر کہنا چاہ رہے تو ہاتھ اٹھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم گزارش ہے پرنسپل صاحب سے کہ واقعی اردو میں پتہ ہی ہے
اور ہمارے فضل کا اپنا چاہے مگر ہمارے فضل کی ضد ہے کہ انگلش میڈیم پڑھنا چاہے ہوں تو اس حساب سے اور ایک مرتبہ دمن گزارش ہے کہ وہ میری ضد لے کے بیٹھے ہیں ابھی بھی ان کو ایک گھنٹہ سمجھانے کے بعد بھی ان کو بولتے کہ سر میری بات نہیں سن رہے میں یہاں تو انگلش میڈیم پڑھتا ہوں اور 2-3 جگہ میں اور دوسرے میڈمس بھی انگلش میں تھوڑا سے پڑھائے تھے اور اردو میں تھوڑا کمزور ہے اردو انگلش بھی ٹھیک ہے تو میری عدم گزارش ہے پرنسپل صاحب سے کہ ان کو تھوڑا آپ ذرا تھوڑا ہمت دیے اور ساتھ دیے تو تھوڑا آگے کر سکتے اور اس سے پہلے ریکویسٹ کرا تھا کہ 2-3 دن میں تھوڑا دیکھ لیے تو میں ٹیوشن بھی لگایا ہم کو اب صحیح بات ہے کہ اردو میڈیم کی مادری زبان ہے آج کل نیا زمانہ ہے تو بچے اپنی نسل ہونے سے کر رہے ہیں اب فائدہ چاہے بچے کا مگر بچہ CC میں انگلش میڈیم پڑھ رہا تو میری آپ سے التجا ہے اپنی گزارش ہے کہ واقعی آپ آنے سے الحمدللہ ایک کالج اچھا یہ ہوا بچے کو تھوڑا رسپانس بھی ملا پڑھائی بھی اچھی ہوئی آپ واقعی آپ ہمارے بچے کا بھلا چاہے مگر ہمارے فرزند بس ایک زندگی کے بیٹھے تھے میں انگلش پڑھتا ہوں آپ سے وہی زندگی اور بیٹھے دنیا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے مگر یہی چاہ رہے تھے سارا میری بات نہیں سن رہے اور اگر سنتے ہیں تو میں آتا ہوں بولتے بس اتنا ہی ہے کوئی شکایت تو نہیں الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں پرنسپل صاحب اس موضوع پہ کچھ ہی دیر میں آپ سے گفتگو کریں گے میں اور کوئی بولنا چاہے اور کوئی بات کرنا چاہے کوئی پیرنٹس سرپرست اگر کچھ پوچھنا چاہے تو آپ کے پاس پھر 1-2 منٹ کا وقفہ ہے میں آپ تک پہنچوں گا یہی کر لیں میں اس کے بعد ہمارے کالج کے حدیث عزیز پرنسپل صاحب آپ کے یہاں پر آنے کے بعد بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مراد ہوں تھوڑی یہی ایک تمنا ہے مراد ہوں تھوڑی یہی ایک تمنا ہے کہ ہر محفل کے تم چاند بنا آپ لوگوں کی زوردار تالیوں کے بیچ میں پرنسپل صاحب کو یہاں پر آنے کی ضرورت دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بیٹھے ہوئے ہمارے کالج کے ریسپیکٹڈ لیکچررز جو BPC, MPC اور CC سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میٹنگ کے اندر موجود قابل احترام پیرنٹس عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ جو پیرنٹس میٹ ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل میٹ ہے دراصل میں یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے لیکچررز اور پیرنٹس ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنے بچوں سے متعلق ان کی تعلیمی صورتحال سے متعلق ان کی حاضری سے متعلق اور مسائل ہوں کالج سے متعلق کچھ شکایتیں ہوں تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یہ ایک اچھا موقع ہے جو ہم نے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور پر آج یہ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کی پیرنٹس میٹ ہے ہمارے پاس اور بھی میڈیمس ہیں انگلش میڈیم بھی ہے تیلگو میڈیم بھی ہے ووکیشنل کے کورسز بھی ہیں بہت سارے کورسز ہمارے پاس ہیں ہم صرف اردو میڈیم کی میٹنگ الگ سے اس لیے منعقد کریں تاکہ اردو میڈیم کے طلباء سے اور پیرنٹس سے خاص طور پر گفتگو کی جا سکے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اردو میڈیم کے اندر اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو حاضری ہے اسٹوڈنٹس کا کالجز کو اٹینڈ کرنا ہے اردو میڈیم کے وہ بہت زیادہ متاثر ہے بہت کم تعداد اردو میڈیم کی اسٹوڈنٹس کی کالجز کو آتی ہے
एक तरह की तशवीश है, एक तरह की फिक्र है, जिसको लेके आज की ये मीटिंग रखी गई। हमने अपने लेक्चर के जरिए से एक एक पेरेंट तक पहुंचने की कोशिश की, एक एक स्टूडेंट के घर तक पहुंचने की कोशिश की, दावतनामे उनको भिजाए, फोन कॉल्स के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से उनको दावत दी गई है कि आइए अपने बच्चों के सिलसिले में बात करिए, आइए अपने बच्चों के फिक्र के सिलसिले में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा या लगाइए, ताकि आपको एहसास हो, अंदाज़ा हो कि कितनी बड़ी अहमियत इस काम की है, कितना अहम वक्त है आपका, आपके बच्चों का, बच्चों के मुस्तकबिल का, बच्चों के कैरियर का, उसको महसूस करें और अपनी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अदा करें। इसीलिए असल में आज की मीटिंग खास तौर पर बुलाई है। अज़ीज़ा गिरामी, आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं, आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसा नहीं है कि तालीम की अहमियत आज ही हो गई है, तालीम की अहमियत तो उस वक्त से है जब से ये दुनिया हुई। तालीम की अहमियत से उस वक्त है जब से इस दुनिया के अंदर इंसान पैदा हुआ है। मालूमात की अहमियत उसी वक्त से है जब से इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अभियान आते गए हैं, हम भी आते गए। खासतौर पर अभी आपने पिताई कलमा के हमारे खालिद साहब ने सुना कि सबसे पहली जो आयत कुरान करीम की उतरी थी इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आप सब जानते हैं, वो तालीम के सिलसिले से शुरू हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। सबसे पहला लफ्ज़ इस उम्मत को जो दिया गया कुरान के अंदर, कुरान के ज़रिए से पहला लफ्ज़ इक़रा, इससे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता है। आपने देखा होगा कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तो तालीम को मुख्तलिफ हैसियतों से हासिल करने का काम किया गया, और जब जब ये दुनिया ने तालीम का दामन हासिल थामा, तालीम हासिल करते रहे, पढ़ते रहे, ये दुनिया के वो तमाम कौमें तरक्की करती गई और बहुत ऊंचाई तक जो है वो पहुंची। आज की सूरत हाल जिस दुनिया के अंदर हम जीते हैं, जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, आप देखिए कि कौन लोग तरक्की करे हुए हैं, किनके पास बहुत ज़्यादा खुशहाली पाई जाती है, किनके पास दुनिया के वसाइल पाए जाते हैं, किनके पास इक़्तिदार पाया जाता है, किनके पास क़ुव्वत और ताकत पाई जाती है, किनके पास पावर मौजूद है, किनके पास समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर की सारी इख्तियारात के हाथ में है। आपको अंदाज़ा होगा कि उन्हीं लोगों के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं जो लोग तालीम हासिल करते हैं, जो तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा आगे। हर कौम जो तालीम का दामन हाथ से थामे रही, वो कौम तरक्की करती रही। आज तरक्की आपको ममालिक का नाम लोगों के आपसे कहा जाएगा तो आप फौरी तौर पर अमेरिका का नाम लेंगे, जापान का नाम लेंगे, फ्रांस का नाम लेंगे, जर्मनी का नाम लेंगे, और दूसरी बात जो है ना मुख्तलिफ ममालिक के नाम आप लेंगे। सारे के सारे ममालिक आज इंतहाई तरक्की की राहों के राह में बढ़ते हैं। उनके कारोबार, उनके मामला, उनकी जो है ना बिजनेसेस, उनकी साइंस की तरक्की, वो आसमान तक पहुँच गए हैं, वो चांद पर पहुँच गए हैं, वो मरीज पर पहुँच गए हैं। मज़ीद वो सारी तफसीलात को पूरी दुनिया की खंगाल मिला के दुनिया के सामने रखने का काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान भी तरक्की कर रहा है, तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वही लोग तरक्की कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे कॉलेज के अंदर हैं, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े तालीमी इदारों के अंदर हैं, जिनके बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जिनके बच्चे मुख्तलिफ हैसियतों से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, वही कौमें तरक्की कर रही हैं। और जो कौम तालीम का दामन हासिल छोड़ती है, वो कौम बैकवर्ड कम्युनिटी के हिस्से से जाकर ऊपर चली जाती है। उम्मत मुस्लिमा के सिलसिले में, मुसलमानों के सिलसिले में, उर्दू मीडियम में ताल्लुक़ रखने वालों के सिलसिले में ये बात बहुत क्लियर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कम्युनिटी बैकवर्ड कम्युनिटी है, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी, तालीमी तौर पर पसमानदा कम्युनिटी। इस वक्त ये उम्मत तालीम को हाथ में थामे की तरक्की याफ्ता कौम है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी तरक्की का दूध नहीं बोलता था, पूरी दुनिया के अंदर इक़्तिदार इसके हाथों के अंदर था, पूरी दुनिया को साइंस की मुख्तलिफ इजाज़त इन्हीं लोगों ने दी थी, पूरी दुनिया को जोग्राफिया की मालूमात इन्हीं लोगों ने दी थी, पूरी दुनिया को मुख्तलिफ किस्म की हैसियतों से आगे आने का जो काम किया था इन्होंने किया था। उसकी वजह ये थी कि वो तालीम हासिल कर रहे थे, जिससे कुरान और हदीस नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि कुरान और हदीस के जरिए से इतने साइंसेस, इतने उलूम निकलते हैं, उन सब के अंदर उन्होंने तरक्की करने की कोशिश की। नतीजा
नतीजे के तौर पर दुनिया के ज़रिए छा गए थे, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल यकसा है, बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल तब्दील हो गई है। तालीम की ना हमारे पास अहमियत है, न तालीम के लिए हम वक्त देना चाहते हैं, न तालीम के लिए सरमाया खर्च करना चाहते हैं, न तालीम के लिए अपनी एनर्जीज लगाना चाहते हैं, न पेरेंट्स दिलचस्पी रखते हैं, न स्टूडेंट्स दिलचस्पी रखते हैं। नतीजे के तौर पर इतनी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना एक तालीम का दौर चल रहा है, तालीम के इस दौर के अंदर लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी जगह बैकवर्ड जहाँ के बैठे हुए हैं। आज के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के एग्जामिनेशन अटेंड कर रहे हैं। साइंस पढ़ने वाले लोग नीट की तैयारियां कर रहे हैं, साइंस पढ़ने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म के साइंसेस के कोर्सेज की तैयारियां कर रहे हैं, एमपीसी करने वाले इंजीनियरिंग की तैयारियां कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई पढ़ रहा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कोई पढ़ रहा है, कोई मुख्तलिफ मैदानों के अंदर आगे जा रहा है। सीईसी पढ़ने वाले सिविल की जो तैयारियां कर रहे हैं, सीईसी पढ़ने वाले मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं, कोई लॉयर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई मुख्तलिफ हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बाज़ लोग कॉमर्स के जरिए से एमबीए करके, एमसीए करके बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की की राहों के अंदर मुसलसल आगे बढ़ते हुए खुद अपने आप को भी खुशहाल बना रहे हैं, अपने घरों को खुशहाल बना रहे हैं, अपने खानदानों की गुर्बत को भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। और समाज के ऊपर जो बदनुमा दाग लगा है, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारी सूरत हाल का जायजा लेंगे, मुसलमानों की सूरत हाल का जायजा लेंगे, उर्दू मीडियम से वापस लोगों की सूरत हाल का जायजा लेंगे, तो हम देखेंगे कि हम जीरो हैं, हम सिफर हैं, हम फिर सारी बातों से रेगुलर कम से कम इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने की जिनके पास क्या कहना चाहिए आपकी सोच नहीं है, फिक्र नहीं है, जिनके पेरेंट्स को इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चे रेगुलर जाके कुछ पढ़ लेंगे, कुछ लिख लेंगे तो दुनिया के अंदर तरक्की करेंगे, ऐसे लोगों की सूरत क्या लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे जाएंगे? इनको सेंस ही नहीं है, ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। और आज के इन हालात के अंदर खास तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ और चंद पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, हालांकि बड़ी तादाद को हमने यहाँ बुलाया था, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर खास तौर पर इन हालात से उर्दू से मुताल्लिक़ लोग, उर्दू की लैंग्वेज से मुताल्लिक़ लोग और उसके बोलने वाले लोग गुजर रहे हैं। ऐसे तशवीशनाक हालात कभी इस मुल्क के अंदर नहीं आए थे। आज भी अगर ये बात नहीं समझ में आएगी, आज भी अगर उम्मत को ये बात समझ नहीं आएगी तो कल के अंदर हालात बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इन हालात से बाहर निकलने के जो रास्ते हैं, वो रास्ते यही है, बच्चों को किसी न किसी सूरत में पढ़ाना होगा। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, स्कूलों में भिजाएंगे नहीं, कॉलेज में भिजाएंगे नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर भिजाएंगे नहीं, तब तक ये उम्मत की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसको मिटाने का फैसला उस मुल्क के लोगों ने कर लिया है। मुख्तलिफ किस्म की साजिशें आपके खिलाफ की जा रही हैं, मुख्तलिफ हैसियतों से आपको क्या कहना चाहिए सफ़ेद से मिटाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। तब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप तालीम के मैदान के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, तालीम के दामन को मजबूती के साथ नहीं थामेंगे। आपकी गुर्बत, आपका इफ्लास, आपकी अदम मालूमात, नाले से बिल्कुल गोरापन, ये सब उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम जानने के लिए तैयार नहीं हैं। दुनिया जिस रफ्तार से जा रही है उस रफ्तार से हम आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी ईजादात हैं उसका इस्तेमाल हम करना जानते हैं। दुनिया ने फ़ोन ईजाद किया, हम फ़ोन हाथ में पकड़ लिया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया ने गाड़ियाँ ईजाद की, हम गाड़ियाँ हाथ पकड़ के रहना घूमने और करने के सिलसिले के अंदर मसरूफ़ है। दुनिया ने एंटरटेनमेंट के सारे ज़राए पैदा किए, वो सारे ज़राए अख्तियार करके एंटरटेनमेंट के अंदर मुसलसल तौर पर मसरूफ़ है, लेकिन हम अपने तौर पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहूँगा कि इन हालात के अंदर इन नौजवानों का जो एजुकेशन से वाबस्ता है, इंटरमीडिएट की सतह के नौजवानों का रोल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज हो रहे हैं, गवर्नमेंट मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट कर रही है, 70-80 हज़ार पोस्ट जो है ना निकले हैं, उसकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन